ओके, प्लेन मिरर हम पढ़ चुके हैं. प्लेन मिरर से we have nothing to do in grade 10, but let's again understand what a plane mirror was. A simple glass slab. Behind it we had a reflective surface, and the reflective surface was generally of silver, and then a protective coating which is of red oxide, and that makes a plane mirror. Plane mirror. And what were the things? The plane mirror gives you always a virtual image, erect, whose object distance and image distance are same. The object is laterally inverse. These were grade 8 concepts, and we also knew a little bit about लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. अब आते हैं हमारे आज के टॉपिक से, और यहां से आपका चैप्टर शुरू हो जाता है. एंड व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न नाउ इज अबाउट स्फेरिकल मिरर्स. ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स. नाउ दिस वन इज नॉट सपोर्टिंग मी 3D, द अदर पैकेज विल सपोर्ट इट. आज इसी में कर लेते हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ स्फेरिकल मिरर्स. पहले समझते हैं पूरे चीज को, बिकॉज वी हैव गॉट इनफ टाइम विद अस टुडे. सो okay, spherical mirror. You might think this is a circle, but this is a sphere. Circle is a 2D impression, sphere is a 3D impression. आसान भाषा में बात करें तो this is nothing but a football or a globe. समझ में आ रहा है ना? So this is a sphere. ये हमारा एक sphere है. And this sphere is made up of what? ये glass से बना हुआ है. Hollow sphere है. वो ग्लोब की तरह, वो ग्लोब हॉलो प्लास्टिक है, ये हॉलो ग्लास से है, पूरा ग्लास है, आगे पीछे सब ग्लास है. क्लियर इतना? ठीक है. इसका एक पोर्शन हम कट आउट करेंगे. नाउ इनिशियली यू विल हैव, बिकॉज इन पिक्चर यू विल ऑलवेज सी स्फेरिकल मिरर मतलब ऐसे एक आर्क बना के रखता है. वो आर्क नहीं है. यू आर गोइंग टू टेक आउट अ पोर्शन फ्रॉम हियर. हैव यू सीन सॉसर ऑफ योर गुड elite class tea and saucer? Have you seen the saucer? It's something like that. Petri dish जैसे होता है ना हमारे बायो लैब में, वैसा. Or else if you have seen Jewish males, male Jews, they wear a cap which is very small out here. देखे ना, वो टाइप का सामान है वो. समझ रहे हैं? तो इसका एक पोर्शन हमने निकाल लिया है. एक फुटबॉल का एक पोर्शन आपने निकाल लिया है. So it will be like what? It will be a spherical shape. Do you get it? ठीक है. So once you try to take out what you call a spherical shape out of here, तो थोड़ा ध्यान दीजिए अभी. ठीक है, मान लीजिए ये दो पोर्शन पे, or else let me do it better. Let us do it in this way. Let's say, okay, all right, okay. So let's say this way and this way. Now you pay your attention on these 2 points. Which 2 points? You pay your attention here, 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 sorry, at this part and at this part. बाकी का पूरा ग्लोब भूल जाइए. So from that globe, इतना सा दो पोर्शन हमने टक करके निकाल लिया है. 2 saucers. Have you understood? Now we can't draw 3D. So what I'll draw is 2D. So this is a saucer. Saucer मतलब कप के नीचे जो प्लेट रहता है, उसको आप अपने व्यू से देख रहे हैं. You are seeing it from your view, so you will see what? Only the arc portion of it. Do you get it? So from now on we will be drawing only the arc. समझ में आया? So one side we are going to have an arc which will look like this. देखो, जैसे इसको नाम दे देते हैं. मान लीजिए ये A है, ये B है, and this is C, and this is D. So the rest of the portion we have excluded. So I have a portion which is like this, and I have a portion which is like this. Do you agree? This is the AB portion, and this is the, sorry, CD portion. Is this understood? Yes. Don't mistake it as a broken bangle. It's a 3D, ये कप के प्लेट के जैसा चीज है, सिर्फ उसको ऐसे रखा गया है, इसीलिए आप सिर्फ ये वाला पोर्शन देखना है. ठीक है, अंडरस्टूड. अब इसको हम मिरर बनाएंगे. समझ में आ गया? ऐसा ग्लास है तो इस कर्व्ड ग्लास है, तो इसके पीछे फिर से सिल्वर लाइनिंग आएगा, रेड ऑक्साइड आएगा. ठीक है, तो दो चीज हो सकता है. सर हम ऐसा मिरर बना सकते हैं कि हम इस साइड को रफ कर देते हैं. वी कैन मेक दिस साइड रफ. पॉसिबल? पॉसिबल. ओके, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है. एक और पोर्शन हो सकता है कि हम इस पोर्शन को रफ करें. ठीक है, अब आप सोचोगे सर आप ना दो साइड बना के कंफ्यूज कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक काम करते हैं,
इस पोर्शन को भूल ही जाते हैं, लेट्स फॉरगेट दिस पोर्शन एंड लेट्स टेक दिस ए बी मिरर वंस अगेन। ए बी को फिर से लेते हैं, ए बी को फिर से लिया, अंडरस्टूड, एंड इस पोर्शन को हमने इस बार रफ साइड कर दिया है। सो बेसिकली फ्रॉम वन कट ऑफ पोर्शन यू कैन क्रिएट टू टाइप ऑफ पॉलिश सरफेस, है ना, एक थोड़ा सा इनर साइड हो गया, एक आउटर साइड। तो ऑब्वियसली एक कॉनकेव होगा, एक कॉन्वेक्स होगा। तो आइए इसको याद कैसे रखने के लिए याद करें। नाउ ऑन दिस व्हाट इज दिस, इज दिस वन इज द रफ साइड, ये हमारा रफ साइड है, और यहां पे कैसे हो गया, ये रफ साइड हो गया, रफ साइड। मैं आपको टाइम दूंगा ड्रॉ करने के लिए, पहले समझ लेते हैं फिर I'll give it time. दिस इज स्मूथ एंड, और ये क्या है, स्मूथ एंड। ओके, यू टेल मी, whenever you cook something, आपने उसको पैन से उतार लेते हैं, कढ़ाई से उतार लेते हैं, उतारने के बाद आप जब टेस्ट करते हो, वो कढ़ाई में थोड़ा बोरा जो लगा रहता है उसको टेस्ट करते हो टेस्ट के लिए, या जो उतार लेते हैं उसको टेस्ट करते हो, उतार वाले चीज को टेस्ट करते हैं ना, अच्छा वाला। तो यहाँ पे मिरर है, तो आवर टेस्टिंग विल नेवर बी डन ऑन द रफ साइड। मिरर है तो आवर टेस्टिंग विल बी ऑलवेज डन ऑन द स्मूथ साइड। तो स्मूथ साइड इज आवर प्रिपेयर्ड सब्जी, राइट। और टेस्टिंग किससे करेंगे, बच्चा से टेस्टिंग करेंगे। किससे, बच्चा। अब बच्चा बिठा दो यहाँ पे, बच्चा बिठा दो यहाँ पे, एक बच्चा। कैसे बच्चा, एक छोटा सा बच्चा पकड़ो और बच्चा को बिठा दो। हाँ, कलर चेंज करते हैं। आइए, एक बच्चा बिठा दो यहाँ पे। आपको नहीं लगता ये बच्चा एक केव के अंदर बैठा हुआ है? तो बस ये कॉनकेव है, नहीं भूलोगे अभी। टेस्ट किससे करेंगे, स्मूथ साइड से करेंगे। किससे टेस्ट करेंगे, बच्चे से। बच्चे को बिठा दो, बच्चा जिसमें केव के अंदर बैठा है, केव है ना, ये देखो केव के अंदर बच्चा बैठा है, कॉनकेव। और ये वाला जो है, इसको हमेशा मुझे याद रखना, मेरा पेट कैसा है, मोटा है। पेट मोटा मतलब कॉन्वेक्स। टेल मी, आर वी क्लियर? व्हाट इज अ स्फेरिकल मिरर? अ स्फेरिकल मिरर जानने से पहले हमें जानना पड़ता है अ ग्लास स्फीयर। अ ग्लास स्फीयर इज अ 3D ऑब्जेक्ट. From that glass sphere, a section was cut out. I initially said 2 sections. Now forget 2 sections. Any one section is cut out, which is also a form of a portion of that sphere. In that portion, we do have a bent inside, we have a bent outside. To make mirror, once we made the bent outside as polished, once we made the bent inside as polished. If the bent inside is polished, what we get is a concave mirror. To understand it, we think of a child who is sitting inside a cave. And the cave will always be the polished side. Remember that, the smooth side. And the other one, which is bulging outwards, is known as convex. Now again, one small trick. In CBSE grade 10, we are going to study 2 things. One is mirror. And once we are done with mirror, when we study refraction, we'll study lens. Keep this in your mind. Both will be analogous to each other. एक मौसी का घर होगा, एक हमारा घर होगा, ऑलमोस्ट सेम। मिरर्स में वी आर गोइंग टू स्टडी 99% स्टडी क्या, सारे प्रॉब्लम सब कॉनकेव के ही होंगे। मिरर में आवर स्टडी विल बी इलैबोरेट, ऑटोमेटिकली इट विल बी इलैबोरेट, ऑल द केसेस विल बी ऑन व्हाट, कॉनकेव। सो वी आर नाउ स्टडीइंग व्हाट, रिफ्लेक्शन। Reflection is all related to mirrors, and so our study for the next 1-2 days will be more concentrating only on concave. Now you can ask me a question, sir, do we not study convex mirror? We do study, but the variation is very less. And when we will study lens, we will be studying convex, and these two will be whatever. If you study this properly, आप ये ऑटोमेटिक आंसर करते रहोगे। गिटार बजाना आता है तो आप सितार भी बजा लोगे, थोड़ा आगे पीछे रहेगा पर बजा लोगे। तो अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा रिफ्लेक्शन, आपको रिफ्रैक्शन और लेंस ऐसे ऐसे आना शुरू हो जाएगा। इट विल बी ऑलमोस्ट सेम, नॉट एग्जैक्टली बट ऑलमोस्ट सेम, राइट। सो क्या सीखा हमने इन ग्रेड 10? वी आर स्टडिंग व्हाट राइट नाउ वी आर स्टडिंग रिफ्लेक्शन, एंड रिफ्लेक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम mirrors. Mirrors can be of 2 types, concave or convex. Sir, plane mirror also weight में पढ़ चुके हो। We will be studying 99%, मतलब थ्योरी भी इसके ऊपर ही ज्यादा होगा
प्रॉब्लम्स दोनों में आएंगे, इसी में प्रॉब्लम्स भी ज्यादा होंगे। इसमें इतना प्रॉब्लम, आप पूछोगे सर व्हाई नॉट मच प्रॉब्लम ऑन दिस, दे कैन गिव यू वेरिएशन, इसमें वेरिएशन नहीं है, इसमें बहुत वेरिएशन आएगा। एंड दिस चैप्टर इज वेरी इजी टू लर्न एंड वेरी इजी टू फॉरगेट। जब मैं सिखाऊंगा ना आपको, आपको लगेगा ये बहुत आसान है, ये बहुत आसान है, तो कुछ ट्रिक्स के साथ सीखना पड़ेगा, सो दैट लेटर व्हेन वी विल डू प्रॉब्लम्स, बिफोर वर्किंग आउट द प्रॉब्लम यू शुड बी एबल टू टेल द आंसर। इसका आंसर 30 से 60 के बीच में होगा, यू योरसेल्फ विल से। तो मन लगा के पढ़ते हैं, ठीक है, समझ में आया। इनिशियली हम स्टडी करेंगे, तो हमने अभी तक स्फेरिकल ग्लास स्फीयर देख लिया, स्फेरिकल मिरर समझ लिया। स्फेरिकल मिरर दो ही टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉन्केव। जिसका बेंट इन सरफेस पॉलिश्ड होता है वो कॉन्केव है, बेंट आउट। एनी डाउट आउट हियर? एनीथिंग यू विश टू राइट, यू कैन राइट। ओके, so you just write down points what you should study after going to home. Your point should be अब तक कहानी, अब तक आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए अब तक। स्फेरिकल मिरर, इससे ज्यादा हमने कुछ नहीं पढ़ा, आपको ये पढ़ना चाहिए। और इसके दो भाई, कॉन्केव, कॉन्वेक्स। यू आस्क योरसेल्फ, मैं 1 मिनट देता हूं, आप खुद सोच लो आपको इसकी क्लैरिटी हुई कि नहीं। और इनको जन्म देने वाला कौन था? ग्लास स्फीयर। ग्लास स्फीयर, और कैसा ग्लास स्फीयर? एक एडजेक्टिव डाल दीजिए, विशेषण जो संज्ञा की विशेषता बताता है, hollow glass sphere. Someone who specifies the noun very nicely is called an adjective. ठीक है, अब आप सोच लो ये सब, आप ये 3 चीज आपको समझ में आया कि नहीं? अगर आया तो हम आगे बढ़ते हैं। आज का वीडियो समझ में आया? ये सब अब जस्ट देखो, आंसर योरसेल्फ, डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ स्फेरिकल मिरर? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ प्लेन मिरर? well, a plane mirror is always in a plane, a spherical mirror is not in a plane. spherical mirror curved रहता है, तो प्लेन में नहीं आएगा। and spherical mirror में you can be either a motu or a patlu, it all depends. it's just like parking में जो आप mirrors देखते हैं ना, shoplifting हटाने के लिए जो security mirrors रहते हैं, those are all known as, I hope nobody is shoplifting. You know what is that disease called? Kleptomania. What? Kleptomania is the disease in people who do pick up things from the shop. एक तो चोर होता है, वो अलग बात है, लेकिन बहुत लोग होते हैं, अच्छे घर के भी बच्चे होते हैं, बड़ों में भी, just go and pick up. Kleptomania. तो kleptomaniac होता है, ये बीमारी है, डिजीज है एक तरह का। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। और कहानी अभी कहाँ पे आ गए हम? कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखे तो spherical mirror, and after that our next directory is concave mirror. ठीक है, कॉन्केव मिरर। अब आइए एक कॉन्केव मिरर बनाया जाए। प्रोटेक्टर यूज कीजिए इनिशियली, तो आपका ड्राइंग भी अच्छा होगा और आपका मिरर देखने में भी अच्छा लगेगा। ठीक है, अब इसके कुछ पार्ट समझते हैं। चिल्ड्रन, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, इसको ब्रोकन चूड़ी मत समझना। दिस इज नॉट अ ब्रोकन बैंगल, इट्स अ प्लेट which has been kept in this manner. Plate means a curved plate. ठीक है, क्लियर? ओके, पहला चीज जानेंगे और हम लिखेंगे उसको पोल ऑफ द मिरर। पोल इज द सेंटर ऑफ अ spherical mirror. The center of the spherical mirror. Center of the spherical mirror बोलने से कौन सा आ गया बेटा? मिरर का सेंटर, ये इसको हम P से डिनोट करेंगे, और P बोले तो सर पोल। और अपर्चर हमने बात की है क्या? अपरिचित शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर आप पहले से कुछ जान के आए हैं तो कृपया अपने फोल्डर को खाली करें, नहीं तो नया ज्ञान घुसेगा नहीं। इसमें एक स्टोरी है, एक बुद्धिस्ट मॉन्क एक बार एक कराटे चैंपियन को वो जाके बोला, आई नो दिस, आई जस्ट वांट दिस। वो उसको टी दे रहा है ना, डाले ही जा रहा है, तो बोल रहे स्टॉप सर, टी इज ओवरफ्लोइंग, आई एम डेलिबरेटली डूइंग, अनलेस यू कम विद एन एम्प्टी कप। अपर्चर तो हमने नाम ही नहीं लिया अभी तक भी, अपर्चर क्यों? ठीक है, आइए नेक्स्ट चीज। अच्छा, इसको जन्म किसने दिया था? इसको जन्म दिया था एक होलोस्फीयर ने, ऐसे है ना,
उस हॉलो ग्लास स्फीयर का कुछ ना कुछ एक सेंटर तो रहा होगा। आए छा गए, शाबाश, 3,20,000 रुपए जीत गया। तो इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऐसे ही पढ़ने आए हो तुम लोग, सबको सब आता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? इट इज द सेंटर ऑफ द hollow glass sphere from which the mirror has been carved out. So children, don't make two major mistakes. The pole is the center of that carved out portion. Center of curvature is the center of the hollow sphere from it. So center of curvature जो है वो माँ का सेंटर है, और पोल क्या है? बच्चे का सेंटर है। समझ में आया? क्लियर? बहुत ही अच्छा। जय और नहीं, और बड़ा नहीं बना सकता था? जोड़ लो ना उसका कॉपी भी। एक साइज होता है ड्राइंग का, एक कॉपी में इतना इतना बड़ा बना रहे हो। हरकुलिस का पृथ्वी बना रहे हो क्या वो? ठीक है। दिवांशु नया प्रोटेक्टर है, शाबाश। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। अच्छा, यहां से शुरू होता है हमारा अगला चीज। अब बहुत कुछ इमेजिनरी वाली बातें आएंगी। बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी इमेजिनरी चीज बनी जाती है। वो रेखा, दैट लाइन, रेखा मतलब ये मत समझे सर मेरी गर्लफ्रेंड का नाम बोल रहा है रेखा, वो नहीं। दैट लाइन which joins, focal length नहीं, फिर भी the center of curvature with the pole, that imaginary line, वो काल्पनिक रेखा। कैसी रेखा? काल्पनिक रेखा। Yes, somebody saying something? Yeah. नहीं कुछ नहीं, प्रिंसिपल फोकस होगा। आप लोग ऐसे आओ ना, पूरा कैसेट रिवाइंड करके आओ, कुछ नहीं पता आपको, आप यहां से सीखने वाले हो, और उसके बाद यू गो एंड से, अदरवाइज यू विल डू हॉच पॉच नाउ। आपको कुछ नहीं पता। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, स्कूल में हो चुका है ना। तो मैंने क्या बोला? दैट इमेजिनरी लाइन, सुनो सुनो सुनो, दैट इमेजिनरी लाइन, वो काल्पनिक रेखा जो कि हॉलोस्फीयर के केंद्र बिंदु अर्थात द सेंटर ऑफ द हॉलोस्फीयर और मिरर के पोल को ज्वाइन करता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं हम इसे। प्रिंसिपल, PAL, एक्सिस। You know the difference between PAL and PLE? PLE मतलब सिद्धांत, what is the principle of propagation of light? That is PLE, और ये मतलब प्रधानाचार्य, the principal, the head, the chief. So principal axis. So what's a principal axis? I'm going to call it an imaginary line. अब समझ में आ रहा है ये चैप्टर रे ऑप्टिक्स क्यों है? क्योंकि आप पूरे लाइट को उसकी ज्योमेट्री से समझने की कोशिश कर रहे हो, और तरह तरह के किरदार और एक्टर्स आपने दिए। इमेजिनरी लाइन दैट joins the center of curvature and pole, CNP लिखा तो आप समझ लेना, center of curvature and pole। ये एक्चुअल लाइन नहीं होता है, ये एक इमेजिनरी लाइन होता है, लेकिन इस इमेजिनरी लाइन पर ही पूरा चैप्टर रहेगा, हमेशा ये बनेगा। समझ में आया? How much you love me? Lots। वो lots क्या है नहीं पता, लेकिन जब भी ऐसे lots, lots। चले आगे। इतना तक कहानी क्लियर? बोला ना बहुत इजी है और बहुत इजी टू फॉरगेट भी है। आगे चलें? अच्छा चलिए, तो फिर क्या बनाएंगे? दिवांशु बनाइए एक मिरर, फिर से सुंदर सा, प्यारा सा, नन्हा सा, मुन्ना सा, प्यारा सा मिरर। और मिरर क्या है? हम सारी स्टडी कर रहे हैं किसको लेके बेटा? कॉनकेव। अच्छा कोई बच्चा बोलेगा मुझे सर क्या मैं ऐसे लेके डायग्राम नहीं बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकते हैं। तो आप वैसे ही क्यों बना रहे हैं? कारण है एक, ठीक है, कारण है, मिस्टेक कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट अ प्रोटोकॉल, दैट्स ऑल। Anybody who touches your feet need not be the best boy or the best girl, and anybody who does not touch your feet need not be a witch, है ना? तो वैसा ही कुछ है, ठीक है। आइए, तो इसमें हमने क्या क्या अब तक सीखा बेटा? हमने सीखा कि एक होता है लाइन जो ज्वाइन करता है किसको? जो ज्वाइन करता है, अभी तक हमारे पास किरदार क्या क्या है? P,
हमें P पता है और C पता है, इससे ज्यादा हमें कोई नहीं पता। और पता है समूह पर्सन जिसको कि हम कहते हैं C, ठीक है, C। आइए अब जो लिखने वाला हूं और जो समझने वाला हूं, पेन्स डाउन फर्स्ट, अंडरस्टैंड। ये आशका आपकी दिल की तमन्ना पूरी होगी अभी। प्रिंसिपल फोकस, but we will write principal focus of a concave mirror। सर आपने यहां मिरर का नाम क्यों ले लिया? जरूरी है, हर वो बच्चा जिसका नाम ऐश्वर्या है वो ब्यूटी मिस वर्ल्ड नहीं है। हमने अपने बच्चे का नाम ऐश्वर्या किया तो वो थोड़ी वो ऐश्वर्या है। जरूरी है कॉन्केव मिरर जानना, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्केव मिरर, राइट। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट वी विल डू नाउ। वी विल कंसीडर rays of light which are parallel and coaxial to the principal axis। parallel मतलब कैसा है बेटा? parallel मतलब जो रामायण में तीर दिखाते हैं ना, ऐसे भी तो parallel आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। parallel and coaxial मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल होके आएगा, ऐसे आएगा। समझ में आया? ठीक है, आओ। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक लिया, कोई कुछ ड्रॉ नहीं करेगा, सिर्फ समझो। अभी ये दो लिया, ये एक और लिया। वैसे तो बहुत सारे रेज आते हैं और इतने बच्चे हम संभाल नहीं सकते, इतनों को ही संभाला हमने। कितने रेज लिए? 4 रेज लिए। इमेजिन 4 rays means these are forming a part of a beam, right? And I'm a very miser, so in my beam I've got only 4 rays, and these 4 rays are coming and hitting how much portion? This much portion. So all reflection and everything will happen here। सर यहां से यहां तक क्या हुआ? अभागा है, इसको कोई रे मिला ही नहीं। समझ में आ रहा है ना? इसकी फूटी किस्मत। यहां से यहां क्या हो गया सर? फूटी किस्मत, रे नहीं है। तो यहां थोड़ा सा नाम दे देते हैं। तो सर ये तो थोड़ा स्पेशल हो गया, ये वाला जोन, ये एक्स और ये वाई। हालांकि सीबीएसई में ये नहीं पढ़ाया जाता है, पर आप समझ सकते हैं। इस पोर्शन को जो है ना, इसको हम बोलते हैं एपर्चर। एपर्चर मतलब रिफ्लेक्टिव सरफेस का वो हिस्सा जहां जंग और कारोबार होने वाला है। हमारी सरहद इतनी बड़ी है, लड़ाई सिर्फ इतने हिस्से में हो रहा है ना। रिफ्लेक्टिव सरफेस का वो हिस्सा where the entire game is going to happen। Sir, if the reflective ray, if the rays would have come till here, so throughout the mirror, everything would have been the aperture। So जब हम कैमरे में बोलते हैं ना aperture इतना करो, so कैमरे के लेंस का एक पोर्शन को ही हमने एक्सपोज किया है for the rays to come in। कैमरा में aperture का सेटिंग होता है, aperture so and so। Have you understood? वैसे एनसीईआरटी में aperture का कोई मेंशन नहीं है। आपने aperture वर्ड बोला था तो हमने बोला, तुमने बोला विक्रम बेताल की तरह तो हमने बोला। aperture क्लियर हो गया? Yes। Isn't aperture like the diameter of the mirror? No, Bitu. Aperture is the portion of the mirror into which the entire activity of reflection is happening। Aperture is only the mirror मेरा इतना बड़ा हो सकता है। To give you a very vague example, I have a big balcony where the sunlight falls only on this much portion। So how much aperture have my balcony has I opened? Only this much I have opened। वही aperture है, ठीक है। आप जब हायर क्लासेस में जाओगे तो आप पढ़ोगे छोटे अपर्चर में कर्व सरफेस बिहेव्स एज अ स्ट्रेट लाइन। सोचो ना, मेरे इस चश्मे का फ्रेम कैसा है? घुमाया हुआ है, तो इस गोल का एक छोटा सा पोर्शन लेने से वो स्ट्रेट लाइन नहीं लगेगा। व्हाई डज द अर्थ अपीयर फ्रॉम हियर टू ऑरम टावर? वी फील वी आर वॉकिंग स्ट्रेट, लेकिन जो यूरेनस से आ रहा है उसको क्या दिख रहा है? तुम टुक 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 नीचे जा रहे हो वैसे। तो अपर्चर को हम स्ट्रेट मान लेते हैं हायर मैथमेटिक्स में, ठीक है। एक और चीज पढ़ाऊंगा जो एनसीईआरटी बुक में नहीं है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। एनसीईआरटी में नहीं है ना कि आपको जानने की जरूरत है। स्फेरिकल मिरर में सर क्या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं होते हैं? ये जस्ट समझ लो। मान लो एक रे ऑफ लाइट ऐसे आके हिट करता है स्फेरिकल मिरर को। कैसे हिट किया? यहाँ पे हिट किया, राइट। सो व्हाट विल हैपन नाउ? हाउ डू आई नो वेयर विल बी नॉर्मल? नॉर्मल कहाँ बनेगा, ठीक है ना। और फिर रिफ्लेक्शन कहाँ पे होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? इसका टेक्निक होता है, जहां पे हिट किया वहां पे हम एक टेंजेंट बनाते हैं। व्हाट इज अ टेंजेंट? अ टेंजेंट इज अ लाइन व्हिच टचेस अ कर्व सरफेस ओनली एट वन पॉइंट। वो 2 पॉइंट को टच ही नहीं कर सकता है। यहां पे हमने एक टेंजेंट बना लिया। समझ में आ गया? और इस टेंजेंट में अभी आपको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मिल गया। ये जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूं। अब आपको क्या मिल गया? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आपको इसका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मिल चुका है।
सो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहाँ पे है? यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। अब उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में हम क्या करेंगे, हम ड्रॉ करेंगे इसके साथ 90 डिग्री पे नॉर्मल, ये है हमारा नॉर्मल। अब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ? ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, और वो रे कैसे निकलेगा? ये है, ये ग्रेड 12 में देखेंगे आप। तो लॉ तो लॉ है भाई, लॉ विल बी वैलिड एवरीवेयर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो दैट व्हेन यू गो टू ग्रेड 12 यू शुड, प्लेन मिरर में एवरीथिंग वाज वेरी इजी, किडो किडो लेवल, यहाँ पे भी वही होता है। ये आपके 10 में नहीं चाहिए, जस्ट आपके समझने के लिए। तो व्हेन अ रे कम्स एंड हिट्स, that point is called the point of incidence. Since it is a spherical surface, so at that point of incidence you will draw a tangent. The tangent will touch only one point and go. Tangent के साथ 90 डिग्री जो मेंटेन करेगा, इनफैक्ट ग्रेड 12 में जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, इसको जब हम टेंजेंट बोलते हैं, इसको हम नॉर्मल बोलते हैं। अ नॉर्मल इज अ लाइन व्हिच मेक्स 90 डिग्री विद द टेंजेंट, वहीं से इसका नाम आया नॉर्मल। बसंती, तुम्हारा नाम क्या है? बसंत में पैदा हुई इसलिए बसंती। नॉर्मल है टेंजेंट को, इसीलिए नॉर्मल। क्लियर है? आगे बढ़े। ये ऐसे ही था, फालतू दिया गल्ला। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रिंसिपल फोकस के लिए। तो प्रिंसिपल फोकस अंडरस्टैंड करने के लिए व्हाट डिड वी डू? वी कंसीडर्ड अ पैरेलल बीम ऑफ रेज व्हिच आर कोएक्सियल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। अब आगे देखेंगे। नाउ दिस पैरेलल बीम ऑफ रेज, ये जो है ना, ये क्या करेगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम वेयर? आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम, चलो इसको ये ब्लू से बनाते हैं। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर दे विल ऑल पास थ्रू वन कॉमन पॉइंट। अब ऐसा क्यों होता है? थोड़ी देर के लिए मान लो कि रात को यही में भूत निकलता है, ऐसा मान लो। देखेंगे कैसे ऐसे होता है कि नहीं होता है, क्यों होता है वो भी देखेंगे। ये ठीक है, चलो फिर ये ऐसे बहुत सारे रेज होते हैं, आप इतने ही ले लो। समझ में आया आपको? राइट? और यहां पे जो पॉइंट पैदा हुआ, इसको हमने नाम दिया एफ। ठीक है? और ये एफ जो है ना, इसी को हम बोलते हैं फोकस, नहीं, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव। अब हमारी इंग्लिश तो उतनी अच्छी नहीं है, अब आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा। डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर, सुनिए, आपको पता नहीं है। मैं अगर बोलता प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज द पॉइंट वेयर नाजिज्म इन जर्मनी गॉट राइज, ना? Principal focus of a concave mirror is a point on the principal axis at which a parallel beam of incident rays coaxial with the principal axis merge or converge upon after getting reflected by a concave mirror. इसीलिए ऐसे मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। कन्वर्ज कर रहे हो आप, कन्वर्ज। ये जो मिरर है ना, हम कौन सा मिरर पढ़ रहे हैं बेटा? ये कॉनकेव। लेंस में भी आगे आप चलो, ये कॉनकेव मिरर हमारा एक तरह का कन्वर्जिंग है, ये कन्वर्ज कराता है रेज को। फिर से देखते हैं डेफिनेशंस यू विल गेट इन बुक, इट्स नॉट बिग डील, बट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द कीवर्ड्स। You may write a definition. See why we say mug up the book definition, because the book definition is the shortest definition which will have all keywords. If you want to write your own English, I don't mind, but mention your keywords. What are the keywords to understand the principal focus? The principal focus is a point on the principal axis. That means whenever you are defining the principal focus, whenever we are defining the principal focus, one thing which should be in our mind, keywords. The keywords are, number one, you should be defining that it is a point, and this point lies where? Point on the principal axis. Then you should also mention what? Parallel and coaxial. What are these? The incident rays. Incident rays which are parallel and coaxial with the principal axis. ये points याद रखिए। coaxial मतलब एक ही एक्सिस बोला ना, कोएक्सियल नहीं होता तो ऐसे भी तो पैरेलल आ सकते थे ना। रामायण वगैरह में तीर दिखाते हैं ना, ऐसे तीर मारते ठर्र बहुत सारे, ये भी तो पैरेलल है, पर वो कोएक्सियल नहीं है। हाँ, कोएक्सियल आप पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस भी बोल सकते हैं, पैरेलल को। ठीक है, एक्चुअली कोएक्सियल मतलब क्लोज में भी होना चाहिए, ज्यादा दूर नहीं लेते हैं इसको। ठीक है ना, हो गया। तीसरा, कन्वर्ज
and meet at a point आफ्टर रिफ्लेक्शन। देखो आप लोग क्या है ना, आप रटने की कोशिश मत करो, आप ये पॉइंट्स याद रखो, अब माइंड में ऑटोमेटिकली क्लियर। ठीक है, कुछ ऐसे रेज जो समानांतरी हैं, पैरेलल, किसके साथ? प्रिंसिपल एक्सिस। कोएक्सियल में हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो थोड़ा पास होना चाहिए, नॉट टू फार अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन वेयर दे आर मर्जिंग ऑन अ पॉइंट on the principal axis, and that point is known as the principal focus. Is it clear? अब principal focus के ऊपर कुछ और चीजें भी देखेंगे, some more things. This principal focus, mind you, we are studying for a concave mirror. The principal focus, अच्छा यहां पे क्या हुआ है देखो, ray of light आया, वही ray reflect हुआ, क्या दो रेज हकीकत में मर्ज किए, रियलिटी में मर्ज किया? बिल्कुल। तो ये फोकस को हम बोलेंगे दिस इज अ रियल फोकस। 1 मार्क क्वेश्चन डाल दिया तुम्हें। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ concave mirror is a real focus. What does the word real in optics means? Real means anything that is created by actual intersection of rays. Virtual is anything created by extrapolation. Non actual, जहां एक्चुअली मीट करता है उसे हम रियल कहते हैं। तो प्रिंसिपल फोकस के बारे में एक और चीज सीखा, कौन से प्रिंसिपल फोकस? कॉन्केव मिरर, दैट इट इज अ रियल फोकस। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, नाउ द लेंथ fp, that is, this is the length measured from the focus to the pole. This is known as the फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। देखा, बहुत इजी पर बहुत सारी चीज है। दिस इज नोन एज द, तो हमने प्रिंसिपल फोकस सीखा, ये उसका एक पार्ट सीखा 1A, ये एक और चीज सीखा 2, फोकल लेंथ। व्हाट इज अ फोकल लेंथ? फोकल लेंथ इज द लेंथ बिटवीन द फोकस मेजर्ड फ्रॉम द फोकस टू द पोल। ठीक है, 2 और इसको 2 और 2A में हम सीखेंगे दैट द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं? बात मत करो, फोकल लेंथ को हम हमेशा डिनोट करते हैं f, and f is said to be r upon 2। अच्छा, इसके लिए r को तो डिफाइन ही नहीं किया था। r क्या है? r is the radius of curvature, radius of curvature, ये भूल गया था। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे चलते हैं। 2 एपिसोड पहले आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ा था। व्हाट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर? सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ दैट हॉलोस्फीयर फ्रॉम वेयर दिस बच्चा वाज बोर्न, एंड द रेडियस ऑफ दैट हॉलोस्फीयर इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, जैसे हम हमारे चश्मे को यहाँ पे गोल हो गया है ना, तो यहाँ पे भी डिजाइनिंग करते वक्त एक रेडियस है, कहीं तो कहीं एक पॉइंट रहेगा, कंप्यूटर मस्ट हैव डन इट, दैट्स कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। So radius of curvature is the radius of the holosphere from which the mirror was carved out, and the focal length will always be half the radius of curvature। यहां से शुरू हो जाता है कुछ और प्रॉब्लम, पिल्लू प्रॉब्लम, सीबीएसई के प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों। The center of curvature is 30 सेंटीमीटर, find the focal length। हाँ, नहीं कर पाए तो बिल्डिंग से कूद देना अपनी घर से, मेरे यहाँ से नहीं। समझ में आया? आसान क्वेश्चन है, वैसे वो कोई देगा नहीं आपको। What is coaxial? कौन सा? अब बोला ना, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पास है, पैरेलल एंड क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये कोएक्सियल वर्ड ही हटा दो, पैरेलल। इंग्लिश में इतना तुम लोग मत, मेरा इंग्लिश खराब है तो चलो इजी वर्ड डाल देते हैं। ठीक है, क्या लिखें? पैरेलल एंड क्लोज टू। ठीक है, ये केबल देख रहे हो, ये केबल, इन्हें हम कोएक्सियल केबल बोलते हैं। पहले जमाने में वो टाटा स्काई का केबल देखा है कभी? उसके बीच में एक हार्ड वायर रहता है और साइड में नॉर्मल वायर्स रहते हैं, उसे कोएक्सियल केबल बोलते हैं। एक एक्सिस और बाकी उसकी एक्सिस के साथ कोएक्सिस है। सो प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्केव मिरर सीखा। देखो, सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला क्या हमें? स्फीयर। स्फीयर का एक रेडियस होता है, काट के निकाल दिया, उसका एक सेंटर मिला, पैदा हुआ पोल। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करने वाला लाइन पैदा हुआ प्रिंसिपल एक्सिस।
प्रिंसिपल एक्सिस पे एक और पॉइंट मिला हमें, कौन? फोकस, है ना? तो ये फोकस वाला हमारा क्या हो गया? प्रिंसिपल फोकस। कैसा है? रियल फोकस है, क्योंकि इसमें रेज एक्चुअली आके मर्ज करते हैं। ठीक है, फोकस से पोल की दूरी कितनी हो गई? फोकल लेंथ हो गई, और ये फोकल लेंथ is half the radius of curvature. मतलब in geometry we can now say that if CP is equal to R, then CF will always be equal to FP will be equal to R by 2, which is nothing but the focal length. Clear? Any cloud? No cloud. और यहां से आइए एक एप्लीकेशन की बातें सीखते हैं। ठीक है, Focal length is denoted by F, small f, and focal length is denoted by small f, and his SI unit will always be meters, क्योंकि ये लेंथ है। ठीक है, मीटर्स, SI यूनिट इज मीटर्स। प्रॉब्लम करते वक्त सेंटीमीटर में भी रहता है, बात अलग है, बट फोकल लेंथ इज ऑलवेज इन मीटर्स। लेंथ ना, लेंथ इन योर फिजिक्स इज ऑलवेज इन मीटर्स SI सिस्टम में। चलें, आइए कुछ नॉलेज की बात देखते हैं। आओ, आ जाओ। ये क्या है? ये है हमारे जय का घर, सुंदर सा घर। अब लड़का का घर में तो मन टिकता नहीं है, तो लड़के ने क्या किया है? लड़के ने घर के ऊपर लगा दिया है क्या? टाटा स्काई लगा दिया है, ऐसे टाटा स्काई, है ना? ठीक हो। अच्छा, हमेशा याद रखिए, ये आगे जाके हम पढ़ेंगे, जो डिस्टेंट रेज होते हैं ना, डिस्टेंट रेज मतलब दूर से आने वाली रेज। कहां दूर से? सर मेरे गर्लफ्रेंड के घर से, मेरे बॉयफ्रेंड, ना, बहुत दूर। कितना दूर? बहुत दूर। स्पेस से आ रहा है, यूरेनस से आ रहा है, सन से आ रहा है, मून से आ रहा है, ऐसा। ठीक है, डिस्टेंट रेज को हम हमेशा लेते हैं पैरेलल, पकड़ते हैं हम पैरेलल। डिस्टेंट रेज आर टेकन ऑलवेज एज पैरेलल। समझ में आया? तो ये हमारा जय साहब ने अब टाटा स्काई लगाया है। ठीक है, तो टाटा स्काई लगाया है, तो टाटा स्काई भी कैसा रहता है? देखियो कभी, टाटा स्काई भी तो कॉनकेव वाला ही होता है भाई साहब। मजा आया? और यहाँ पे कौन है? यहाँ पे है हमारा स्टार एशियानेट 2 सैटेलाइट है, बीम कर रहा है उसके घर पे। रेस कैसे आ रहे हैं जय के घर पे? जय के घर में रेस कुछ ऐसे आ रहे हैं, ऐसे ऐसे। यहाँ से आ रहा है, स्टार टीवी आ रहा है, नहीं बैठ यार, हाँ ये आ रहा है उसका, ये कार्टून नेटवर्क आ रहा है, एक और चैनल आ रहा है, रेज आ रहा है, एक और रेज आ रहा है, ठीक है, एक और रेज आ रहा है। अब जरा कॉन्सेप्ट लगाओ। पैरेलल रेज क्या करते हैं? हमेशा मर्ज करते हैं एक ही पॉइंट पे। रुक जाओ, अभी कुछ नहीं बात करोगे, एक ही पॉइंट पे मर्ज करेंगे। करा दो मर्ज उनको, ठीक है, इनको एक ही पॉइंट पे मर्ज कराते हैं। कुछ यहाँ पे मर्ज करिए, यहाँ पे मर्ज करिए। I don't know whether you have seen a dish antenna properly. A dish antenna will always have another arm like this, and the small device will be fitted out here, which is known as the LNB of the dish antenna. ये सब हमारे किताब आप स्कूल में नहीं बताया गया। इसको कहते हैं लो नॉइज बेस। लो नॉइज बेस, जब आप कोई भी डिश एंटेना देखते हैं ना, डिश एंटेना विल बी लाइक दिस, और ये यहाँ पे ऐसा लगा रहेगा, यहाँ पे एक डंडा रहेगा, और यहाँ पे ऐसे आके एक टॉर्च लाइट के जैसा एक चीज रहेगा। इसका जो अलाइनमेंट है ना, हैज टू बी ऑन द प्रिंसिपल फोकस। अगर आपको किसी से दुश्मनी निकालना है अपने नेबर का, छत पे जाके इसको जस्ट थोड़ा सा हिला दीजिए। Your Tata Sky is not getting signal. Please call the operator. Dial 1-800 आ जाएगा। इसी पे अगर इसलिए बारिश होने से हिल जाता है, क्लाउड वगैरह आ जाता है, ये वाला प्रॉब्लम। दिस इज अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। और जो हमारे वीसैट के डिशेस होते हैं, जैसे आप वॉर में जा रहे हो, आप बॉर्डर्स में हो, आपको रडार चाहिए, ये जो घूमते रहता है ना रिथियन रडार जैसे, वीसैट डिशेस जो रहते हैं, वो सब ऐसा ही रहता है कॉनकेव। द मेन आइडिया इज दैट एवरीथिंग शुड बी एट द फोकस बिकॉज दिस डिस्टेंट रे कम्स इन। ये जस्ट कॉन्सेप्चुअल के लिए, इसको आगे भी पढ़ेंगे, इसके और बहुत सारे यूजेस भी है। ठीक है, तो प्रिंसिपल फोकस हमने सीख लिया किसका? कॉनकेव मिरर का। ठीक है, कहानी अब तक क्या क्या सीखे आज? स्फेरिकल मिरर, स्फीयर, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर कॉनकेव कॉन्वेक्स, फिर कॉनकेव में ज्यादा चलते हैं। चलो, प्रिंसिपल फोकस देख लिया, फोकल लेंथ देख लिया, रेडियस देख लिया, पोल देख लिया, अपर्चर के बारे में समझ लिया,
फोकल लेंथ समझ लिया भाई, बहुत चीज, और थोड़ा डिसेंटेना भी समझ लिया। आइए आगे अब पढ़ते हैं। सर वो क्या सौतेला बच्चा है, कौन? कॉन्वेक्स मिरर, ऐसा नहीं, उसको भी पढ़ेंगे। आइए, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। बोर हो रहे हो ना? बोर होने से भी कोई रास्ता नहीं है, इसलिए हमेशा बोलो बोर नहीं हो रहा हूं। क्या खाली पुटर पुटर करते रहते हो, जोर से बोलो ना। हाँ सर बोर हो रहा हूँ। हाँ बोलो सर, आपने कुछ पूछना था, आपको बोलिए। हाँ Principal refers to a statement. हाँ, प्रिंसिपल फोकस, सारे फोकसों में वो प्रिंसिपल फोकस है। हाँ नहीं 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 नहीं, वो एली सिद्धांत। एली जब भी होगा ना, तब आप हमेशा सोचिए एली इज एसोसिएटेड इन हिंदी क्यों होता है के साथ। व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड विस्कोसिटी? कोई चीज गाढ़ा क्यों है, प्रिंसिपल क्यों के लिए एली होता है। एली का हिंदी वर्ड है सिद्धांत। दिस इज प्रमुख, प्रिंसिपल, मेन, चीफ। ये तो हिंदी नहीं बोलता है ना मेरे साथ, पता है ना, एक साल तक नहीं बोला है। कॉन्वेक्स मिरर, हाँ यस मैडम। Principal axis for focus memory, are they all imaginary? एवरीथिंग इज इमेजिनरी। एंटायर रे ऑप्टिक्स, यहां से जो भी पढ़ रहे हैं सब कुछ इमेजिनरी है। अगर इमेजिनरी नहीं करेंगे तो उसके बाद वी वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाई थिंग्स हैपन। So we have conceptualized this whole thing. Principal axis is imaginary, but focus, yes, there must be some point where they all meet. उसी के बेसिस पे सारा एक्सप्लेनेशन बन रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम छू के देख सकते हैं फोकस कहाँ पे, पर फोकस एक्सपेरिमेंटली आप फाइंड आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे और बताएंगे, टेंशन मत लो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। पहले कॉन्वेक्स को भी थोड़ा प्यार कर लेते हैं। आ जाइए। अरे भाई तुम दो दो क्यों बनते हो? हाँ, so this is my convex mirror। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी बनाइए। क्या क्या बनाना था? मध्य रेखा, प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ तो प्रिंसिपल अच्छा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किस साइड में होगा? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेकिन भाई साहब यहाँ होगा, गलती मत करना। ठीक है, यहाँ होगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो लिख दो यहाँ पे C, और यहाँ इसका एक पोल भी रहेगा। पोल, हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉन टू उदयपुर? उदयपुर गए हैं? उदयपुर में सब कुछ पोल है। पोल मतलब द्वार, हाथी पोल, हाथी पोल मार्केट। ठीक है, कहानी वही रहेगी। कैसी कहानी? वो प्यारे प्यारे हमारे रेज, कैसे रेज है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड क्लोज टू इट। टिंग 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 टिंग। अब मैं छोटा सा एक चोरी करूंगा, नहीं तो मैं इसको ज्योमेट्रिकली आपको दिखा नहीं सकता हूं। आप इसलिए पहले देखो, उसके बाद बनाना। ठीक है, now the mirror that you saw before it was concave mirror which was known as a converging mirror। वो क्या करता है, जो भी रेज उस पे आता है, चल जाओ मिल जाओ ऐसे, चलो चलो बच्चों जाके मिल जाओ, ये उसका उल्टा है। इसको हम कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर। इस पे जो भी रेज आएगा वो जाएगा, बिखर जाओ बिखर जाओ। तो ये सारे रेज कन्वर्ज नहीं करेंगे, बिखर जाएंगे। बिखर जाएंगे तो पहला रे कैसे आएगा, पहले समझिए। बिखर जाएंगे तो पहला रे कैसे आएगा, ऐसे आएगा। दूसरा रे कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। इसके रे कैसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे। इसका रे कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। इनका कभी भी आपस में मिलन हो सकता है क्या? कभी नहीं मिलन हो सकता है। तो क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से तो शायद तुम लोग एक साथ निकले थे, अपरेंटली। समझ में आ रहा है? तो मैं अभी डोंट ड्रॉ, I am drawing it just and this is not the right way to draw, but otherwise I won't be able to explain it to you. So I am trying to say that, say this is the point from where all the rays would actually appear to diverge out. पहले समझिए, don't draw the diagram right now, first understand.
ठीक है, इसको ड्रॉ नहीं करना था, मुझे जो ड्रॉ करना था वो अब मैं ड्रॉ कर रहा हूं। ये जो मेरा पहला रे है ना, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कुछ इस तरह निकलेगा, समझ में आया? ये जो मेरा चौथा रे है ये कुछ ऐसा निकलेगा, ये जो मेरा तीसरा रे है ये कुछ ऐसा निकलेगा, समझ में आ रहा है? और ये जो मेरा दूसरा रे है ये कुछ ऐसा निकलेगा। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, द पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट रे हैज बीन रिफ्लेक्टेड in a divergent manner and they can never meet. So what we do, we extrapolate them and try to find a point which must have been their point from where they would have appeared to get diverged out. समझ में आ रहा है ना, जहां से शायद ये लोग बिखरे थे। काल्पनिक बात हो रही है, क्या ये एक्चुअल रेज है? These are all virtual rays extrapolated backward. तो इनका एक्चुअल में तो कोई मिलन हो ही नहीं रहा, ये तो आपके दिमाग में आप सोच रहे हो यहां मिल रहा है। ये जो पॉइंट फॉर्म होगा ये कहलाएगा द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, डिफाइन भी करेंगे और आगे पढ़ेंगे कि ये फोकस वर्चुअल फोकस है। इफ यू गो बैक टू दिस स्लाइड, इफ यू गो बैक टू दिस स्लाइड, ये रियल फोकस था और ये जो है ये वर्चुअल फोकस है। तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा इसका डेफिनेशन। डेफिनेशन में पहला क्या आ जाएगा, वही चीज, प्रिंसिपल एक्सिस, फिर वही वाला रेज, कौन से रेज? इंसिडेंट रेज, पैरेलल एंड क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस। फिर क्या होता है, ये डाइवर्ज हो जाते हैं, डाइवर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन, है ना। और जो सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, पॉइंट बिहाइंड द मिरर। अच्छा, ये एक और नया वर्ड आप सीखोगे, इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड बिहाइंड द मिरर। ये पॉइंट कहां पे है बेटा? बिहाइंड द मिरर। अगर आप ये पॉइंट देखो, देखो थोड़ा सा मुझे भी एक्सक्यूज करना, सब कुछ एक साथ तो याद नहीं आता है। आई डोंट फाइंड गुड बाय रीडिंग टीचिंग फ्रॉम अ टेक्स्ट बुक। यहां क्या था? इन फ्रंट ऑफ द मिरर, जहां आप खड़े हुए वहीं पे ही फोकस है। ये कैसा है? behind the mirror. Okay, the point behind the mirror from which the reflected rays appear to diverge out. अच्छा, when you are making your notes, please refer your textbook. जैसे ये अगर आप लक्ष्मी सिंह में देखेंगे तो बहुत सुंदर से बोल्ड में दिया रहेगा with the least number of words. And you are human being, so your mugging up capacity now is going to go down slowly. Your logic increases because you are aging now. छोटे बच्चे की तरह आप तोते की तरह रट नहीं सकते। इसको आप याद रखिए माइंड मैप को। कभी भी वो डेफिनेशन अगर खिटपिट कर रहा है आपको मेन एग्जाम के टाइम पे, अगर ये क्लैरिटी है तो सब क्लैरिटी है। So the point lies here, and such a focus will be known as a virtual focus. शाबाश अतिक सवाल, virtual focus। और यहां भी स्टोरी वही हो जाता है, focal length, and here also the focal length will be half the radius of curvature. Clear? ये बच्चा को इतना ही पढ़ना है अभी इसको फिर वापस उसमें चले जाएंगे। किसमें? कॉन्केव मिरर। Sir, Yes sir. so everything that on the right side of the mirror is virtual and everything that on the Not exactly, not exactly. Everything that is behind the mirror, I would say. राइट और लेफ्ट तो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने सरफेस ऐसे रखा ना। आप अगर इस ड्राइंग को, आज का बेटा ऐसे करते, देखो मान लो इस ड्राइंग को आप ऐसे करते, जस्ट फॉर 1 मिनट, हाँ, अगर आप ऐसे करते, दिस इज ऑल्सो अ कॉन्वेक्स मिरर, डू यू एग्री और नॉट? इसमें इंसिडेंट रे कैसे आते? ऐसे आते, डाइवर्ज होते, ऐसे डाइवर्ज होते, मिलन होता तो कहां होता? ऐसे। तो आपका लेफ्ट राइट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, करेक्ट नहीं है। करेक्ट है, यहां भी बिहाइंड द मिरर है। लेफ्ट राइट इज नॉट द यूनिवर्सल सत्य। सत्य क्या है? मिरर के पीछे वाला इज द सत्य। समझ में आया? सो एवरीथिंग दैट हैपेंस बिहाइंड द मिरर इज वर्चुअल वर्चुअल वर्चुअल। एवरीथिंग दैट हैपेंस इन फ्रंट ऑफ द मिरर इज एक्चुअल 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 और रियल रियल। बेटो देयर इज अ स्मॉल नॉइज गोइंग ऑन हियर, सो जस्ट होल्ड। नहीं उसको बंद मत करो, मर जाओगे। 1 मिनट रुक जाओ आशका, जस्ट गिव मी 30 सेकेंड्स। थोड़ा ज्यादा ये मच्छर भगा रहा है ना अभी, फिर सुनते हैं आपको।
अभी हमको सुनने की इच्छा है ना, ये थोड़ा ज्यादा ही करेगा। दिस इज मर्फी, डू यू नो व्हाट इज मर्फीज लॉ? जब तक ये हो रहा है, if something doesn't have to happen, that will everything that can go wrong. पीठ में खुजली हो रहा है, the point of itch is farthest from the point of reach. जहां आपका हाथ नहीं पहुंचता है वहीं पे खुजली होगा। स्क्रूड्राइवर में काम कर रहे हो ऊपर, अगर गिर गया ना, वो गिर के रोल के अंदर चला जाएगा कि तुम्हें सीढ़ी से उतर गया, जो नहीं होना है। अभी देखो वो यहीं पे मच्छर भगा रहा है, मुझे इसको सुनना है ना, नहीं सुनने देगा। हाँ आशका, गो अहेड। So which side the edges are on that side, if we know anything, it's going to be virtual. No, again you come back to the same thing. Virtual is anything that is behind the mirror. Okay, once again, no, one minute. This is plane mirror. Agreed? This is also plane mirror, है ना? अभी आप सोचो, आप अगर अपने आप को खड़ा करोगे तो किस साइड खड़ा करोगे? इस मिरर के लिए इस साइड खड़ा करोगे, इस मिरर के लिए इस साइड खड़ा करोगे। करेक्ट है कि नहीं? समझ में आया आपको? दोनों ही केस में वेयर आर यू स्टैंडिंग? इन फ्रंट ऑफ द मिरर। राइट लेफ्ट से कोई मतलब नहीं है। तो अगर ये इन फ्रंट ऑफ द मिरर हुआ तो ये बैक ऑफ द मिरर है। क्लियर? और अगर ये इन फ्रंट ऑफ द मिरर है तो ये बैक ऑफ द मिरर है। जो भी घटना इस जगह पे हो रही है वो सब वर्चुअल है। अब क्लियर है? Yeah, that's what I'm saying. See the line, not like those lines. हाँ, so the concept is we don't draw it this way. Why? You have to hold it for 1 or 2 classes. We don't draw it this way. जैसे कोई कहता है ना, बच्चा पैदा हुआ, उसके दाएं हाथ में हम पेन देते हैं, वो तो लेफ्ट भी हो सकता है ना। कल्चर कहता है राइट में दो, अब राइट में देने से वो विद्वान बनेगा ऐसी तो कोई बात नहीं। लेकिन अब आशका कह सकती है सर ऐसे ड्राइंग्स क्यों नहीं चलते हैं? ये भी तो करेक्ट ड्राइंग है। बिल्कुल करेक्ट है, प्रोटोकॉल ये नहीं है। क्यों ये नहीं है? क्योंकि ये रे ऑप्टिक्स का चैप्टर है। आगे चल के हम कुछ प्लस माइनस का कन्वेंशन करेंगे, तो सारी दुनिया एक जैसा चलना है ना। अगर मेरे लिए ग्राफ पेपर में ये साइड माइनस है, आपके लिए भी माइनस होना चाहिए। सो हम सब कौन से डायग्राम से चलेंगे? ये पैटर्न के डायग्राम में चलेंगे। थोड़ा आपको बता ही देता हूं, all the diagrams you will see hence on that will close Ashka's question forever. The incident rays are always going to come from left to right. Where are they going to come from? Left to right. We will not see a single diagram where the incident rays are going to come from right to left. ठीक है? तो आप बोलोगे सर ऐसा होता है क्या, इस साइड से रेज नहीं आते? बिल्कुल आते हैं। अगर आप पढ़ाना जाओ बच्चों को और आप फोर्स का चैप्टर पढ़ा रहे हो, आप कैसे पढ़ाओगे? सपोज देयर इज अ फोर्स, ऐसे लिखते हैं ना। कोई ऐसे सपोज देयर इज अ फोर्स जनरली नहीं लिखता है, पर फोर्स ऐसे भी तो हो सकता है ना, चांटा दोनों ही गाल पे लग सकता है। इस पे लगा तो ये वाला है, इस पे लगा तो ये। मारेंगे ना, एक हमेशा यही हाथ उठता है हमारा, मारेंगे कैसे? मार तो इससे भी लग सकता है, वो उठता नहीं है। क्लियर है? प्रोटोकॉल ये है हमारा। ठीक है? क्लियर? ओके, वेरी गुड। तो चलिए आगे। और आगे जाने से पहले बहुत कुछ सीख लिया, तो थोड़ा सा फटफट देख लेते हैं। आज की कहानी शुरू हुई थी स्फेरिकल मिरर से, और आप चेक कीजिए आपको ये सब समझ में आया कि नहीं। स्फेरिकल ने 2 बच्चे दिए, एक का नाम था कॉनकेव, एक का नाम था कॉन्वेक्स। कॉनकेव देखने में कुछ इस प्रकार का है, कॉन्वेक्स देखने में कुछ इस प्रकार का है। क्लियर हुआ? स्फेरिकल मिरर जानते ही हम सोचते हैं कि ये एक स्फीयर है, और स्फीयर है तो स्फीयर के लिए एक सेंटर होना जरूरी है और एक रेडियस होना जरूरी है। क्या आप इन दोनों चीजों से परिचित हैं? सेंटर मतलब, इस सेंटर को हम बोलेंगे, कीप एन आई ऑन द वॉच, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और रेडियस को हम क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। भाई साहब समझ में आया? इसके बाद बने 2 मिरर्स, और इन दोनों मिरर का भी एक सेंटर होता है जिसका नाम है हाथी पोल, यानी कि पोल। क्लियर है? इसके बाद हमने एक और कॉन्सेप्ट डिफाइन किया। सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में हमने देखा, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी किसी ने छेड़ा था तो हमने वो भी देखा, एपर्चर क्या होता है। ठीक है? फिर हमने एक और चीज सीखा कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। प्रिंसिपल
प्रिंसिपल फोकस को सीखते वक्त हमने दोनों मिरर्स देखे, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। याद रखिए कॉनकेव मतलब यहाँ पे कन्वर्ज करता है, तो ये हमारा होता है रियल फोकस, और ये डाइवर्ज कराता है तो यहाँ पे होता है वर्चुअल फोकस, है ना। प्रिंसिपल फोकस के बाद हमने देखा एक और चीज जिसे हम कहते हैं फोकल लेंथ, जो कि होती है r/2। यस सर, 1 नहीं 10 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ, reflected rays on one side are they parallel, both the rays, like you do two rays. ना It is not. they cannot be parallel, can only be in plane mirror। भाई साहब अभी बहुत आगे चल गए हैं, अभी आप मत पूछो सर द्रौपदी को देख के राम ने धनुष क्यों तोड़ा था, दैट वाज महाभारत, राम इज इन रामायण। वो सिर्फ प्लेन मिरर में हो सकता है। क्या पढ़ा था आपने, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन एंड रेगुलर रिफ्लेक्शन। In this chapter what we are studying, post reflection, nothing can be parallel because your surface itself is not plane, it's a spherical surface। हर जगह पे टेंजेंट अलग बनेगा। देखो कैसे पता चलेगा सर, हमारे प्रश्न में थोड़ी सी बेवकूफी थी क्या, हाँ थोड़ी सी तो थी सर, कैसे पता चलेगा, ये है हमारा मिरर। आओ इस मिरर में हम बनाने की कोशिश करते हैं क्या, टेंजेंट। यहाँ पे टेंजेंट बनाओगे तो ऐसे बनेगा, यहाँ पे टेंजेंट बनाओगे तो ऐसे बनेगा, यहाँ पे टेंजेंट बनाओगे तो ऐसे बनेगा। हर जगह टेंजेंट अलग अलग है, लेकिन अगर प्लेन मिरर होता तो एक ही लाइन टेंजेंट होता। समझ में आ रहा है, पता चल गया, सवाल में बेवकूफी बना था। ठीक है, क्लियर। क्या चीज बेटो, वही तो है ना, टेंजेंट नहीं बनेगा ना, देयर द सरफेस इटसेल्फ इज द टेंजेंट। टेंजेंट का कोई क्वेश्चन ही नहीं है प्लेन मिरर में, टेंजेंट नहीं बनेगा। मैं कह रहा हूं ना, आई एम ट्राइंग टू टेल हिम दैट इन प्लेन मिरर इट्स अ स्ट्रेट लाइन। दैट्स व्हाई दैट्स, हाँ तुम नेबर के कनेक्शन से निकल के अपने कनेक्शन में आओ, चेक करो बाजू वाले के कनेक्शन में देख रहा होगा, बाजू में देखा होगा कोई ओपन इंटरनेट है, दो उसको दावो, देखो और क्या। कितने लोग ये सब काम करते हो, ये देखो ये करती है। हमारे जमाने में तो हम लोग दूसरे के केबल से भी केबल देखते थे। साइंस में जब तक आप बदमाशी नहीं करोगे आप सीख ही नहीं सकते हो। जैसे टाटा स्काई से पहले केबल टीवी हुआ करता था ना, केबल आ रहा है, बहुत लोगों ने केबल नहीं लिया। आप किसी की भी केबल टीवी में जो कोएक्सियल होता है ना, क्यों सीखते हैं, मोटा बीच वाला जो वायर है दैट्स द मेन वायर, पिन लो और उसके वायर को ऐसे खींच दो और वो पिन उसमें टच करो, उसमें से एक और वायर लेके अपने टीवी में लगाओ। Y'all, the problem is what? No, y'all are from a modern generation, but your naughtiness index is very less to us. मैं क्या क्या करता था, even when I used to be in job, ऐसे ही मजा लेना है। सबके घर में टाटा स्काई है ना, अपना रिमोट लेके बालकनी में बैठो और थोड़ा सा झुक के नीचे वाले के घर में कोई मजा, इंडिया पाकिस्तान मैच वगैरह देख रहा है ना, ऐसे चैनल घुमा दो, टक करके उसका चैनल चेंज हो जाएगा 100%। No, you do one thing. If you have anybody whom you know uses still Tata Sky, उसका रिमोट लेके चले जाना और जाके चलाना, ठीक चलेगा आपका। That does not happen only in your Amazon Fire Stick, वो मैप रिमोट है, क्योंकि Fire Stick लिख के दे देगा आपको that this remote is not map, वो बिल्कुल वो सब एक ही चालू रिमोट है। आपका जब रिमोट खराब होता है ना, तो आप ये सोनू भाई की दुकान में जाते हो, भाई साहब वो टाटा स्काई वाली रिमोट देना, ये इसमें ना सर भैया थोड़ा सा दाग है, चेंज कर, और चिंटू पैकेट दिखा दे मैडम को, टक 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 इतने सारे रिमोट दिखा देगा। आप कोई भी एक लाके ऐसे मॉर्निंग इवनिंग वॉक कर रहे हो अपने वाइफ के साथ, ऐसे जाते जाते, अच्छा बेटा खूब कार्टून देख रहे हो, क्यों चेंज हो, अच्छा नहीं हुआ, इसका मतलब एयरटेल वाले हैं ये लोग, कल से एयरटेल का रिमोट भी लाऊंगा, कोई ना कोई तो काम करेगा। समझ में आया। ऐसे जैसे जब कोविड हुआ था ना 2017 में, जो सब बैच वाले थे, मास्टर लड़के होते थे, सवाल पूछ देता था ना, घर से पढ़ाते थे तभी, तो बच्चा भी ऐसे कहता, अच्छा बताओ व्हाट इज अ प्रिंसिपल फोकस, पढ़ता नहीं है लड़का। सब प्रिंसिपल फोकस इज हैंग हो गया दिखा रहा है, लेकिन पीछे सीलिंग फैन घूम रहा है उसका, ठीक है। तो आपको तो ऐसे ऐसे बदमाश बच्चे होते थे। तो प्रिंसिपल इज ऐसे, क्लियर, इतना सा स्टोरी, ठीक है। इसके बाद ये, लेकिन आज आप घर पे पढ़ेंगे, मैं आपको नोट्स हैंड आउट भी दूंगा, बिकॉज यू आर लर्निंग मेनी थिंग्स विच आर इजी टू रिमेंबर बट वेरी फॉरगेट। ओके, इसके बाद हम आ जाते हैं
I don't know whether I'll be able to complete or not. I'll just थोड़ा सा इनिशियल स्टार्ट करते हैं. हाँ जी, हाँ, रे डायग्राम आने से पहले रूल्स फॉर, और इसको दोबारा पढ़ाएंगे आज. आप जस्ट थोड़ा सा 2 मिनट एब्जॉर्ब करो. फटाफट टाइम देख, हो गया. हाँ हाँ, पी लो अपना 2 मिनट. अच्छा 2 मिनट बाकी हैं, और यहाँ पे आते रहता है ना, कीप वॉच ऑन इट. रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल थिंग. आसान आसान कुछ 3-4 रूल है बस. इस रूल बड़ा कूल है, पर स्कूल में सब नामकूल बनते हैं. ठीक है, तो बड़ा अच्छा से सोचिए. इसको हम आपको अगली बार फिर पढ़ाएंगे. थोड़ा थोड़ा सा कुछ रूल्स देखते हैं. ठीक है, तो हम कौन से किसके साथ करेंगे? प्यारा बच्चा हमारा. हु इज द प्यारा बच्चा? कॉनकेव, कॉनकेव मिरर. तो कॉनकेव मिरर में हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशंस फॉर डिफरेंट क्राइटेरिया. पर वो इमेजेस ऐसे बनते क्यों है? क्योंकि कुछ रूल तो रहेगा. तो सबसे पहले रूल्स को सीखते हैं, और ये जस्ट अ डिपस्टिक. डोंट टेक दिस, वी विल स्टार्ट दिस अगेन फ्रॉम, बिकॉज हियर वी विल ड्रॉ इट प्रॉपर्ली. यू हैव टू ड्रॉ एंड आज जस्ट समझिए. तो एक हमारा कॉनकेव मिरर ऐसे हुआ, और इस तरह से आए हमारे एचिंग, और ये है हमारा प्रधान रेखा. वाओ, एकदम सीधा बना है. ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम? प्रिंसिपल एक्सिस. तो यहाँ पे हमने इसको P नाम दे दिया, यहाँ पे F नाम दे दिया, यहाँ पे C नाम दे दिया. ठीक है, पहला रूल सीखते हैं, कानून की पहली कड़ी. आइए देखते हैं. पहला रूल है, ए रे ऑफ लाइट. कौन है? ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस after reflection will always pass through the principal focus. अरे कॉनकेव मिरर मत बोलो, लिख दिया ना कॉनकेव मिरर है. बार बार क्यों उसको ये बोलते रहते हो कि कॉन्वेक्स तुम सौतेला हो? ये रूल है. ठीक है, कॉनकेव में, कॉन्वेक्स में थोड़ा सा चेंज होगा. ये पहला रूल. तो पहला रूल लिख ही दिया. जब उसको हम तो शॉर्ट हैंड में लिखते हैं, रे. कैसा रे? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. तुम लेकिन ये सब स्पेनिश भाषा में मत लिखो, जीरो मिलेगा. मोतीचूर के लड्डू वो भी बड़े बड़े मिलेंगे. पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes through focus after reflection. दूसरा वाला रूल एकदम ऐसा है, मेरे मासी का बेटा मेरा मौसेरा भाई है, तो मैं उसका क्या भाई हुआ? मैं भी तो मौसेरा भाई होऊंगा. आइए वो वाला रूल देखते हैं. वो रूल कैसा है? एकदम आसान. ए रे ऑफ लाइट which passes through the focus after reflection will become parallel to principal axis. ऐसे आए तो ऐसे जाओगे, और ऐसे प्रवेश किया था तो ऐसे जाओगे. ये दो जस्ट लिख के, और इसके बाद कर देंगे आप लोग ये छुट्टी. अंगद वैसे ही अंगड़ाई ले रहा है, अंगड़ाइयां लेती हूं जब मैं जोर जोर से. ठीक है, रे पासिंग थ्रू फोकस becomes parallel to principal axis after reflection. कुछ और कानून भी है, लेकिन कानून की वो कड़ी अगले अदालत के सेशन में होगा. आज यहां अदालत रोकी जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन. ठीक है भाई साहब, you have no 1 minute, you have no numericals to do. You have 1 week in hand with you. You have all the time to make beautiful notes, read your chapter and get your things absolutely clear. One day wake up early in the morning and read them such a nice way. मॉर्निंग पढ़ना बहुत जरूरी है. आपके स्कूल जाने से पहले आप 1 घंटा निकालो. लाइफ इज गोइंग टू बी हार्शर फ्रॉम नाउ. अगर आप मॉर्निंग में एक बार इसको पढ़ेंगे ना, आपकी ये डेफिनेशंस तक 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 याद होने शुरू हो जाएंगे. यस आशा बेटू, यू हैड अ क्वेश्चन. 1 minute. Hey. I was just asking for every single data make it follow all the 4 rules. Yeah. It means I'm going to tell you 4 rules. So out of these 4 rules, we may use 2 rules, 1 rule, the other rule, or the other rule. बस ये 4 के ऊपर ही पूरा चैप्टर घूमता रहेगा. And this some of the other rule will be there. And if you understand these rules properly, these are the same rules which are going to, I told you na, that in lenses we're going to have a parallel merge over. तो लेंस में भी कहानी कुछ ऐसा ही होता रहेगा. ठीक है, आज का रंगारंग कार्यक्रम यहाँ समाप्त होता है.